माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 241। एक मिनट, आपका विषय बैठो, सब बैठो। माननीय सदस्यगण, एक मिनट, बापू जी बिलाज, एक मिनट बैठिए, आप बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी माननीय सदस्य विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदन की गरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। सहमति, असहमति, सकारात्मक रूप से व्यंग्य भी हुए हैं यहाँ पर, लेकिन एक विशेष तरीके से टिप्पणी ये संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्य ने भी इस बारे में वहाँ पर सदन में क्षमा मांग लिए और लिखित में मुझे दे दिया। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 241, श्री शफी परिमल। सर क्वेश्चन नंबर, प्लीज बैठिए, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 241 जवाब पटेल पे लिखा। माननीय सदस्य। Thank you, Honorable Speaker, sir, for the opportunity. Sir, I would like to bring to your attention through this House about the difficulties faced by the people of Vadagara constituency due to the ongoing construction works and its delay of the national highway, sir. Sir, we have so many issues regarding underpasses, overbridges, the width of service roads, so many junctions being embankments, and so many other issues. Sir, places like Tikodi, they are protesting for more than 1 year for allotting an underpass in the town where there is a railway station, where there is school, where there is masjid, where there is temple, and so many other things including the people's market. Sir, I'll come to the point. Sir, will your good self, including Tikodi, Anela, Ariyur, Pandalayani, and so many other, Nandi, so many other issues, will your good self order a high-level meeting to be convened to discuss these difficulties and including Vadagara Junction? Okay. Sir, can you take a can you take appropriate action Please. to settle this issue, sir? Honorable sir, regarding these problems, the Kerala is in such a situation that in Kerala the whole development is roadside development. One side school, one side colleges, a residential area is there. So everyone is demanding for underpass. If suppose we are going to implement, we have to make the road of underpass. And that is to be a big problem. So somewhere when there the road connectivity is there, we can make it. Somewhere because of the education institution also we consider. Even many of the member of parliament from Kerala many times come to me, and that is not up to the criteria also we sanction that. But regarding this issue, I will call honorable member. Again, I will go through all the problems which already he present here, and I will try to find out the way out positively that how it can be helpful for him. Thank you. Honorable supplementary. Sir, there is yet another long pending public demand for an alternative road to existing Tamarasheri Get Road, connecting Wayanad and Kozhikode district. Sir, it's part of National Highway 766, Kozhikode-Kollagal. Okay. Sir, there is a proposal that has been proposed since 1993, sir. A Padinyaratara Purithod for a greenfield highway. It's a matter of just 8 kilometers land, sir. If the central government can involve and settle this issue, this will be a great blessing for an alternative road to the Gut Road, where landslides, landslips during monsoons are a common practice. And even the narrow width of the road is creating havoc in traffic, sir. Okay. This is a much demanded and much awaited proposal. This Padinyaratara Purithod road, if you can start an inquiry and investigation on this, this will be much helpful for the people, sir. Honorable sir,
This is the question is only related with the port connectivity highway corridor in Kerala. It is neither refer directly or indirectly to any other project, but this alignment is being figured. It is to be still in the process. Again, when I have a meeting with him, I don't know the details about it, but at that time we will discuss. And I always positive about considering the convenience of the people by and large. I will try to find out the option and try to help. Sri E.B. Idanji. Sir, thank you, sir. Sir, as the Honorable Minister have mentioned, the question is extremely related to the National Highway 966. As you already know, you were the Shipping and Port Minister, and you know the importance of the Kochi Shipyard Limited, which we are all proud to say that which built the first indigenous aircraft carrier INS Vikrant for this country. Sir, Cochin Port has an historical importance, sir. Sir, ये जो highway है आपने propose किया है, which is connecting the Nattur Junction, Vaitila, Arur, to the historical Cochin Port, which has very much significance in the construction. So, will this be a major interactive area where a cloveleaf flyover is built? Because it also intersects with the National Highway NH66 and NH66B. So, how is the project in process? How is the design? And we all know that port is in a very bad shape. Cochin Port is in a very bad shape. This highway would be extremely helpful for the development of the port also, sir. Sir, this is the first time when after the government under leadership of Prime Minister Modi ji, we have decided to giving highest priority for the port development in the country. Anywhere in the world, in any country, the growth of that country is depending upon the ports, and that is very important. So in my ministry, actually previously I was a shipping minister. At that time, the Cochin Shipyard is the flagship company of our government, and now that company is doing really very, very miraculous job, and they are well reputed, recognized in the whole world now. At that time, it is to be when it is going for capital market, there was very, very big response from the people of India. So no doubt, at that time we have also given some land to Cochin Shipyard in Cochin Port. But Cochin Port was making losses because there was big refinery at the old government constructed, but the pipeline was the problem. And 10 years I constantly pursuing, but this is the first time. Now the present Chief Minister has taken the interest and he complete that gas pipeline, and that's the reason now the economic viability of the Cochin Port is increased. So regarding the port connectivity, we have overall 108 port connectivity projects. The cost is 1,25,000 crore, and already we have decided to construct all this project, out of which this Mumbai-Kanyakumari highway, NH 966B, there is a spur we need to make Nettur to Vittila Arur, bypass with CIFT junction in Wellington Island, is very important. The DPR is in the process. Within a month, we will get the DPR, and immediately we will go for the tender, and we will start this project. And at the same time, there are also 3 port connectivity projects in Kerala. That is 4 laning of NH 96B connecting Wellington Island to Kundanur. And the second is Alappuzha. This is non-major port providing ramps to the 6-lane elevated highway being developed from the Alappuzha beach, earlier road from State Highway, Alappuzha bypass intersection. And the third is Alikkal, that is also non-major port, and Azikal port proposed NH bypass and widening of 2 kilometers. So all 3 projects are in the DPR process. Within a month we will get the final DPR, and after that we will start the project. Shri Shashi Tharoor ji. Honourable Minister has forgotten one more, which is in the Vilnius port in my constituency, sir. As you know, the government is supposed to have worked with the state government, with the NHAI, to expedite approvals for interim and permanent cloverleaf intersection road connectivity to the Vilnius International Seaport, which, as you know, is supposed to be commissioned next month, sir.
So there is a big lag between the progress in commissioning of the port and the need to modify the existing National Highway 66 in order to construct the highway to give us the port connectivity, which is this question that is before us, sir. What steps are you being able to take, sir, with the state government and the NHAI to ensure that this is done in a timely manner? Otherwise, we'll have a port and no roads to take the goods inside the country. Thank you, sir. Honorable Sir, what Mr. Shashi Tharoor is telling is very, very important. And at the time when I was shipping minister, I sanctioned that port. The problem is that the port as a private party taken by Adani Port. And now previously they have already committed me that they will make that roads. But now presently they are back out and now there are some problem. Just 4 or 5 days before, I have a long meeting with the chief minister and we are now calling them. I will find out some way out because you are very, very important as without road connectivity, there is no use of the port. So within 8-10 days, I will find out the way out. Already it is in the process and we will do it. क्वेश्चन नंबर 242 श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग। माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल लुधियाना से संबंधित है, पर मैं आपकी अनुमति से थोड़ा सा एक व्यापक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। 8 अप्रैल 2022 को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी समिति है, उसने लघु और छोटे उद्योगों के ऊपर एक रिपोर्ट इस सदन के पटल पे रखी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो क्रेडिट गैप है एमएसएमई सेक्टर में, छोटे और लघु उद्योगों में, वो 20 से 25 लाख करोड़ का है। सिर्फ 40% ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं जो औपचारिक वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे फाइनेंस लेते हैं। और इस चीज से निजात पाने के लिए उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि जैसे आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसी तरह से आपके व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 30% जो भारत की जीडीपी है वो लघु और छोटे उद्योगों से आती है। 45% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो छोटे और लघु उद्योगों से आती है। और 48% जो आपका एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 अप्रैल 2022 की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उसको आपके मंत्रालय ने लागू किया है कि नहीं किया है? मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य महोदय को कि जो हमारे एमएसएमई विभाग के बारे में, चाहे एक्सपोर्ट का मात्रा हो या व्यापार नौकरी देने का मामला हो या जीडीपी का मामला हो, उस पर उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी की है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण के विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी का सीमा के तहत है। गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है और दिनांक 1/4/23 से वार्षिक गारंटी फीस के लिए स्टैंडर्ड दर 50% कम कर दिया गया है। सर, क्वेश्चन नंबर 243 श्री राजकुमार चाहर। ये लुधियाना से संबंधित है, केवल लुधियाना से। ये परिप्रेक्ष्य में होता तो ठीक था।
243। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही जनहित के मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोटर अधिनियम 1988 की धारा 162 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल के इलाज के लिए कैशलेस की व्यवस्था की कि उनका इलाज हो सके। लेकिन ये 6 राज्यों में मान्य किया गया। इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये योजना लागू की गई। लेकिन ये आसाम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड सहित केवल 6 राज्यों में है। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कैशलेस इलाज में जिन मरीजों के गंभीर दुर्घटनाओं में जो घायल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उनके सिर में चोट आ जाती है, कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें एक बाध्यता भी है कि दुर्घटना के 7 दिन के भीतर और 1.5 लाख रुपए तक का ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी और 7 दिन और 1.5 लाख की जो बाध्यता है उसको क्या समाप्त करके उसको ओपन किया जाएगा? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कोऑर्डिनेट पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। मैं आपके मार्फत फिर से एक बार सदन के सम्मान्य सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि हमने हर संसद सदस्य के अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते हैं, ना कोविड में मरते हैं, ना दंगों में मरते हैं, 1,78,000। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, आपके अध्यक्षता में आप इसको मॉनिटरिंग करिए। पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, NHI को, सबको आप आदेश दीजिए, हम सुधारेंगे उस स्पॉट आप को। दोबारा एक बार सबको लेटर लिख दें। कई सदस्य की मीटिंग बुलाते नहीं हुए, तो एक बार दोबारा पत्र लिख दें। मैं दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके ज़िले में ये एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं, उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। सप्लीमेंट्री है? नहीं बोल दिया। नवीन जिंदल जी।
सतीश गौतम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोटर व्हीकल के संशोधन एक्ट में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी, इसका स्टेटस क्या है और कब तक इस बोर्ड की स्थापना होना अपेक्षित है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले 6 साल पहले ये बोर्ड करने का निर्णय हुआ। उसके बाद में इसके ऊपर रिटायर्ड सेक्रेटरी अपॉइंट करना, वो कौन से ग्रेड का होना, तो अभी भी मुझे दुख है कि अभी तक पूरे अप्रूवल नहीं मिल पाए और इसके कारण ये बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, पर मैं जल्दी ही कोशिश करके इसको करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 244 244 गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय। आप पटल पर रखें। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 2.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले 1 साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीज़न है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है, 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 849। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज़ 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया।
अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पे एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं, अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बनाए। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में वो स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ बाद में स्क्रैपिंग करनी है उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें, ये भी मैं अनुरोध करता हूँ। श्री गौरव गोगोई जी। हाँ, आपका सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे जो विकसित देश हैं, जैसे जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन्होंने कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स कोई टाइमलाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइमलाइन तय की है कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स में हो? इस कंट्री में सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं उनकी भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेज़ी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है। और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था, तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो
रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे, ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है, और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH-37 हमारा संपूर्ण नहीं है। बहुत खराब वहाँ पे डिज़ाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद सर। अन्य स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NHAI के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने एक इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोरहाट झांझी, ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे। अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी, तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट ढाबा भी होगा और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम टॉयलेट्स भी होंगे और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है, हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में, तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे, और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज़ को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायोलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो? रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना पड़ेगा और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई। हर बार ये हथौड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे और मैं जब करता था तो मेरे पर गरीब लोग, हम बेकार हो जाएंगे, ये लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का गरीबों का कैसा होगा। मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस
ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। माननीय सदस्यगणों, पूरा सदन इस बात को लेकर चिंतित है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, यहाँ पूरा देश बैठा है, हमारी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी है। हमको गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें, और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इस गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम दुर्घटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को जागृत करना, दिशा देना, ये भी हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मुझे आशा है कि हम सामूहिक और गंभीर प्रयास कर कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 245 श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन। प्रश्न क्रमांक 245। जवाब पटेल पर। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये दिलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये 69 प्रकल्प चालू आहेत, ज्याच्यापैकी 25 प्रकल्प हे भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणीमुळे त्या ठिकाणी रखडले गेले। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना सांगायचं आहे की NH 211चं ज्यावेळेस 10 वर्षापूर्वी भूसंपादन झालं सोलापूर छत्रपती संभाजीनगर हायवेचं, त्यावेळेस लक्ष्मीकांत शंकरवीर नावाच्या शेतकऱ्याला प्रति गुंठा 2,30,000 रुपये इतका मावेजा मिळाला होता। आणि अध्यक्ष महोदय, आता सुरत चेन्नई महामार्गाचं त्या ठिकाणी भूसंपादन होत आहे, त्यावेळेस बालाजी माधव पाटील नावाच्या शेतकऱ्याला 6,250 रुपये प्रति गुंठा त्या ठिकाणी मावेजा मिळतो। 10 वर्षापूर्वी जे भूसंपादन झालं त्याला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मावेजा मिळतोय आणि आज जे भूसंपादन होतंय त्याला अतिशय किरकोळ प्रमाणात मावेजा मिळतोय। त्याच्यामुळं ह्याच्यातनं नाराजीमधनं शेतकरी परत कोर्टामध्ये जातात आणि भूसंपादन करायला त्या ठिकाणी अडचणी येतात। माझी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की 2013च्या कायद्याप्रमाणे जर भूसंपादन त्या ठिकाणी केलंय, जो कायदा त्या ठिकाणी डायल्यूट करायचा प्रयत्न होतोय, त्या पद्धतीने जर केलं तर शेतकऱ्यालाही मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मावेजा मिळेल, तर ती अंमलबजावणी मंत्री महोदय करणार का? आणि सुरत चेन्नई ह्या हायवेला जोडण्यासाठी एक उस्मानाबाद शहराला स्पर रोडनं जोडण्याच्या बाबतीतलं एक प्रपोजल मंत्री महोदय मी आपल्याकडे दिलं, आपणही त्याच्या बाबतीत सकारात्मक आहात, तर त्याला कधीपर्यंत मंजुरी मिळेल? माननीय स्पीकर महोदय, लँड ॲक्विजिशन हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असणारा विषय आहे। आपले जे जिल्हाधिकारी आहेत ते राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे लँड ॲक्विजिशनची कॉस्ट काढतात आणि त्याला काला म्हणतो आपण। त्यांनी ती कॉस्ट काढल्यानंतर त्यांना अपील करण्याचा अधिकार आहे आणि ती कॉस्ट आम्हाला स्वीकारावी लागते। जर आम्ही स्वीकारली तर पेमेंट मिळतं, नाही स्वीकारली तर आम्ही कोर्टात जाऊ शकतो किंवा ते पुढे जाऊ शकतात अपीलमध्ये। त्यामुळे हा प्रश्न राज्य सरकारच्या ह्याच्यात आहे। पण तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे ही जी केस आहे की 10 वर्षानंतर तेवढाच निघाला, त्याच्यात राज्य सरकारच्या ह्याच्यात तुम्ही कलेक्टरला पुन्हा एकदा त्याला रिकॅल्क्युलेट करायला सांगा आणि त्यातून मार्ग निघाला तो होईल। अध्यक्ष महाराज, यांच्या इनके मतदार क्षेत्र से एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड जा रहा है। आपको याद होगा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते हैं वहाँ से नीचे। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते 18 टनल बना रहे रोड का काम शुरू हुआ है। वहाँ से हम आते आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए। वो वर्ल्ड की अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने 1 साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है। वो टनल का 75% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोर टनल आती है
जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है ये सूरत जाता है। अब जो उत्तर से दक्षिण जाते थे उनको मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाना पड़ता था, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं। अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, कोची, पूरे साउथ को। तो अध्यक्ष महाराज ये जो पूछ रहे हैं, ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम कर रहा है। यानी ये गुजरात, और ये बहुत विशेषता है कि जैसे आपके राजस्थान में ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का दिल्ली मुंबई से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो उत्तर को दक्षिण से जुड़ने वाला है। उसमें इनका धाराशिव, उस्मानाबाद आता है और उसको एक स्पर देना चाहिए, जैसे हमने कोटा के लिए दिया है। उनकी मांग है, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। श्री ऑनरेबल एक महत्त्वाचा उमरगा सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 2014 मध्ये मंत्री महोदय याला वर्क ऑर्डर दिली गेली आणि जवळपास आता 2024 उजाडत आहे। खरं तर 2.5 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणं अपेक्षित होतं, पण दुर्दैवानं आज 10 वर्ष झाले तरी तो रस्ता काही पूर्ण त्या ठिकाणी होत नाही। कदाचित ताजमहल सुद्धा लवकर बांधून झाला असेल, पण ही रस्ता काही मंत्री महोदय त्या ठिकाणी लवकर होत नाही। तर याला एक टाइम बाउंड त्या ठिकाणी, आणि हा रस्ता न झाल्यामुळं अनेक लोकांचे जीव त्या ठिकाणी जात आहेत। मंत्री महोदय, कालच माझ्या मुलीच्या वर्गात शिकणारा एक मुलगा धाराशिवला जे सर्व्हिस रोडचं काम न झाल्यामुळं रॉंग साईडनं जात असताना एका ट्रकला धडकून त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडला। त्याचं नाव आहे अर्णब अजय सोनवणे। अतिशय म्हणजे दुर्दैवी गोष्ट आहे मंत्री महोदय। तर हा रस्ता जो आहे उमरगा सोलापूरचा, हा किती दिवसात पूर्ण होईल? त्याला काही टाइम बाउंड त्या ठिकाणी तुम्ही मर्यादा देणार आहेत का? आणि दुसरं एक टेंभुर्णीमधनं लातूरला येण्याच्या बाबतीत आपण चौपदरीकरणाचा DPR पण मंत्री महोदय आपल्याकडे दिला, आपणही सकारात्मक आहात। गडकरी साहेब, तुमचं प्रचंड नाव आहे, फक्त ह्या उमरगा आणि सोलापूरच्या रस्त्यामुळे तुम्हीही प्रयत्न करताय, करत नाहीत असं नाही। मी जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडे आलो त्यावेळेस तुम्ही त्या ठिकाणी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय, पण ह्याला एक टाइम ठरवून त्या ठिकाणी त्या वेळेत हा रस्ता त्या ठिकाणी पूर्ण व्हावा, ही एक माझी मागणी आहे। आणि टेंभुर्णीपासनं लातूरपर्यंत जो हे आहे हायवे आहे त्या चौपदरीकरणाचा DPR आपल्याकडे आलाय, त्याला तात्काळ मंजुरी मिळून तोही पूर्ण व्हावा। टेंभुर्णी से लातूर तक का जो रोड है उसको 4 लेनिंग मंजूर किया है, 1 महीने भर में उसका टेंडर लग जाएगा। आप बोल रहे हैं वो सीरियस प्रॉब्लम है, मैं भी उसके कारण काफ़ी लोग तकरार करते हैं। दूसरा जो रास्ता है जो सोलापुर तक आता है, उसमें जो कंपनी थी उसने दिवाला पीटा, वो NCLT में गई, फिर उसके कंपनी के ऊपर CBI और ED ने रेड मारी, अब उसके पैसे सीज कर दिए। अब वो प्रॉब्लम है कि वो रोड पूरा नहीं कर पा रहा, फिर उसमें मैं कोर्ट में गए। अब प्रॉब्लम है कि ये जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो आते हैं रोड में, केवल रोड में लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस, रेलवे अप्रूवल, यूटिलिटी शिफ्टिंग, अदर क्लियरेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्टर इशू, बैंक का डिसबर्समेंट रुकता है, फोर्स मेजर होते हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने दिवाला पीट दिया, वो NCLT में गया। हम वो शुरू करके दूसरे को लाए, उतने में CBI और ED की रेड पड़ी, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने भी उसमें स्टे दिया। तो ये बियॉन्ड कैपेसिटी कुछ प्रॉब्लम्स है, पर आप जरा आज क्वेश्चन आवर के बाद मीटिंग है, सभी MP आने वाले हैं, आप आ जाइए, फिर से कुछ वे आउट निकल सकता है क्या, मैं कोशिश करूँगा। श्री संजय हरिभाव जाधव। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सविस्तर जानकारी दी है, मगर फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि परियोजनाओं को पूरा करने में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण देरी हुई है, उसको किस तरह पूरा किया जाएगा, और इसमें महाराष्ट्र के परभणी संसदीय क्षेत्र की कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाएं हैं,
क्या सरकार अपनी परभणी क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से और राज्यों से जोड़ने के लिए कोई राज्य मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही है या करने का विचार रखती है? मैं ये आप मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिए। 1800 रोड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रश्न केवल लिमिटेड एक इसका है। अब ये मेरे पास जानकारी नहीं है इसकी, वैसे जनरली थोड़ी बहुत जानकारी होती है, पर मैं महाराष्ट्र में इतना ही बताऊंगा कि 3 साल से 23 प्रोजेक्ट पेंडिंग है महाराष्ट्र में, और 103 ईयर में 18 प्रोजेक्ट है, 1 साल में 37 प्रोजेक्ट है, टोटल 78 प्रोजेक्ट्स है और प्रॉब्लम्स है सर। तो मैं उनको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि इसमें से जल्दी होने की कोशिश करेंगे, और इसका परमाणु का डिटेल आप मुझे मिलिए, मैं जानकारी लूँगा। क्वेश्चन नंबर 246 श्री लालजी वर्मा। 246। माननीय मंत्री जी, उत्तर पटल पर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने स्पेसिफिक सवाल किया था कि 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर तक का मांगा था ब्यौरा, और जो माननीय मंत्री जी ने उन प्रोजेक्ट का विवरण दिया है वो इस बीच का नहीं दिया। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जो समय के लिए हमने मांगा था, ये दिनांक 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक CSR और R&R फंड के अंतर्गत NTPC टांडा के द्वारा किन किन परियोजनाओं पर कितने कितने लागत का कार्य कराया गया और उसका चयन का आधार क्या है, किस आधार पर चयनित किए गए। तो ये तो पहला प्रश्न मेरा ये है, ये बताने की कृपा करें और उसी समय का बतावें। दूसरा मान्यवर, इसी के साथ साथ जो चयनित किए गए हैं, केवल एक विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन होना था और जिस दिन आचार संहिता लागू की गई उसी दिन 25 स्कूटी भेंट किया गया, उसका चयन किन आधार पर किया गया? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो जानकारी मांगी है, द डिटेल्स ऑफ फंड्स ऑफ रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट और CSR, तो इसमें हमने जो पूरा फंड वहाँ दिया गया है RR सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट में 2,76,00,000 रुपए इसको लागत की गई है और CSR के अंतर्गत 7,10,00,000 रुपए की लागत की गई है। तो दोनों की ये डिटेल दी गई है। जहाँ तक डिटेल ऑफ वर्ष की बात है, इसमें इन सभी वर्षों का 21-22 में 8 प्रोजेक्ट्स उनके नाम दिए गए हैं, 22-23 इसमें 21 प्रोजेक्ट्स इनके नाम दिए गए हैं, 23-24 इसमें 26 प्रोजेक्ट्स इसमें सब नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक एक प्रोजेक्ट के नाम की डिटेल ये माने सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दी गई। लालजी वर्मा जी, सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी ने जो उपलब्ध कराया है उसमें इस दौरान का किस किस प्रोजेक्ट में कितना खर्च है इसका उल्लेख नहीं किया है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से संरक्षण आपका चाहता हूं कि इसमें प्रोजेक्ट वाइज एक कास्ट नहीं दिया गया और उसका चयन का आधार किस आधार पर। मान्यवर, इसमें बड़े पैमाने पर जो जिलाधिकारी का कार्यालय है, SP का कार्यालय है, SP को गाड़ी देने में, इन चीज़ों में खर्च किया जा रहा है। हम लोग उसके प्रदूषण से पीड़ित हैं। मान्यवर, प्रदूषण हमारे माननीय मंत्री जी बैठ जाएं, मैं पूछ लूँ, मैं सवाल आ जाए मान्यवर, अभी सवाल आप शॉर्ट में सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं और समय नहीं लूंगा। शॉर्ट में सवाल मत दो और आप डायरेक्शन भी मत दो। मैं सीधा पूछूंगा मान्यवर, हम लोग पीड़ित हैं, प्रदूषण से पीड़ित हैं। मान्यवर, हमारी जमीन ले गई, हमारा मकान गिरा दिया गया, हमारा नहीं बन पा रहा है, सवाल क्या? उसके लिए नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि केवल एक विधानसभा में चुनाव के समय इस तरह के कितने कार्यों पर पैसा दिया गया। दूसरे इसमें दिया गया कि स्थापना दिवस पर, स्थापना दिवस 29 सितंबर 2023 में हुआ, 24 में नहीं हुआ, उससे उस पर जो खर्च किया गया वो किसके आधार पर दिया गया? मान्यवर, दूसरा मेरा मानना है कि इसका चयन करने का जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन बता रहा हूँ आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में किया गया है और इसमें बहुत विस्तार से सारा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी कंपनी जिसका वर्ष के अंदर 500 करोड़ रुपया या इससे अधिक टर्नओवर होगा अथवा जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया लेकिन टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया होगा, प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे अधिक होगा, तो ऐसे कंपनी को एक अपनी CSR कमेटी बनानी होगी और वो CSR कमेटी उसके प्रावधान दिए गए हैं अंडर शेड्यूल 7, जिसमें 12 तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है और वो कमेटी बैठ के तय करेगी कि इसमें से किस किस एक्टिविटी की जो डिमांड आई हुई है उस डिमांड के आधार पर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। इस खास करके जिस प्रश्न की बात की जा रही है इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो NTPC की प्रावधान उस कमेटी ने बनाए हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड आएगी उसको भी कंसल्ट किया जा सकता है, पंचायतों से डिमांड आएगी उसको किया जा सकता है, उनके अपने सर्वे हैं उसमें भी किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वो भी की जा सकती हैं। ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा गया कि ऐसे इस क्षेत्र के अंदर 25 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे दी जाए, उस प्रावधान के अंतर्गत आता है। जहाँ तक इसकी डेट की बात है कि किस डेट को दिया गया और चुनाव के समय दिया गया, पहली बात तो जानकारी ये है कि चुनाव के बाद का सारा विषय है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये सितंबर में समाप्त होता है, ये अक्टूबर के अंदर सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 1 अक्टूबर 24 की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पत्र दिया गया है। अगली बात बैठिए, अगली बात अगर किसी प्रकार का कोई चुनाव से जुड़ा विषय है तो चुनाव का जुड़ा विषय हमारे सदस्य महोदय ये विषय चुनाव आयोग का होता है। इनको किसी प्रकार का वहाँ कोई उल्लंघन लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत ये हुआ है तो चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए और उसमें कोई ना कोई इनको एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सब उसके बाद के विषय है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे एक से इसमें कुल मिलाकर अगर इस प्रकार से इन 28 जो सूची दी गई है, ये 28 स्कूटी जो दी गई है, इन 28 स्कूटी का पूरा विवरण दिया गया है कि किस किस परिवार को, किस किस महिला को दिया गया है और महिलाओं का सशक्तिकरण वो उसमें प्रावधान दिया है। हम एक तरफ तो लखपति दीदी की बात करते हैं, एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक 28 स्कूटी अगर ऐसे गरीब परिवारों में, ऐसे परिवारों में दे दी जाती है तो हमारे सदस्य महोदय को इसका आपत्ति होती है। मुझे समझ से परा लगता है, ये समझ से परे है। यानी क्या ये चाहते हैं कि ऐसे समाज को मदद न की जाए? क्या ये चाहते हैं कि महिलाओं को और किसी प्रकार की सहायता न दी जाए? क्या उनके सशक्तिकरण के ये विरोधी हैं? अगर ये विरोधी हैं तो फिर इनको सदन में स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर आपत्ति और वो चुनाव को लेकर करते हैं। ये शर्म आने वाली बात है, ये शर्म की बात है। आप जैसे लोग श्री जी के पड़वी अब बोलो ना भाई। Honorable Speaker, I wanted to ask on question number 247, not 246. क्वेश्चन नंबर नहीं है आपका, सप्लीमेंट्री पूछने के लिए दिया, क्वेश्चन नंबर आपका आ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 247, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सर, आपके माध्यम से जो उत्तर मिला है उस उत्तर में आदरणीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि महाराष्ट्र के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी और अहमदनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें 3 से 60 किलोमीटर रास्ते और 2,500 करोड़ का अपने सैंक्शन कर लिया है। इसके मैं आपसे धन्यवाद तो दूंगा, लेकिन आपका काम पूरे देश में
महाराष्ट्र में तो आपने पहले काम किया है, इसके लिए मैं तो आपको भी सलाम करता हूँ, देश भी सलाम आपको करता हूँ। और आपके उत्तर के विवरण में जो आपको पता है, आप भी बाबा के भक्त हैं, साईं भक्त हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी शिरडी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ से आपका समय खत्म हो जाएगा, जल्दी पूछ लें आप, 12 बजने वाली है। सर, जो उस रास्ते से जितने लोग आते हैं वो पूरे हिंदुस्तान से अनेक लोग आते हैं, अनेक राज्यों से लोग आते हैं, यही रास्ते से आते हैं। सावलीवीर तो अहिल्यानगर 12 साल से ये रास्ता इतना खराब हो रहा है कि आने वाला हर एक भक्त गाली दे के चला जाता है। अनेक एक्सीडेंट भी इसके ऊपर हुए हैं। आप माननीय सदस्य सवाल पूछ लें, तो समय खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं। सर, ये रास्ता जल्दी से जल्दी हो, ओके, ये मेरी विनती है। माननीय मंत्री जी। सर, सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो वस्तुस्थिति है, पर ये मालूम नहीं क्या हुआ, 3 बार टेंडर निकला, 3 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, एक की बैंक गारंटी जो है वो फ्रॉड निकली, और एक अभी कल जब आया तो 2 ही कॉन्ट्रैक्टर ने भरा, और उसमें फिर सवाल पूछा अधिकारी ने मुझे, तो वो भी कैंसिल करने का मैंने आदेश दिया। अब ये 15 दिन का शॉर्टेस्ट टेंडर निकालेंगे, और ये करीब 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और शिरडी में लोग आते हैं, मुझे भी बड़ा संकोच होता है, दुख होता है, और ये अभी जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर इसका अच्छा काम करेंगे। अब ये नया टेंडर अब निकल रहा है, तो वहाँ के जो सांसद है उन्होंने भी मांग की थी कि इसको कंक्रीट का बनाए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ख़राब है, पर उसका अध्ययन करके मैं जल्द से जल्द एक काम शुरू करूँगा। तब तक रोड बहुत ख़राब स्थिति में है, उसको मेंटेनेंस करके वो राइडेबल रहेगा, ऐसा जरूर कोशिश करें। सर, सप्लीमेंट्री सर। हाँ, सप्लीमेंट्री सर, इसके बारे में मेरा जो दूसरा एक प्रस्ताव है आपके, मैंने उसका आपको निवेदन भी दिया है। शाहपुर टू गेवराई, यही अनेक जिले और हमारे महाराष्ट्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो आप जल्दी से जल्दी सैंक्शन करें। दूसरा, मैं आपको एक सुझाव तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो रास्ते बिकॉज ऑफ टेंडर की जो न्यूनतम का 40% 50% तक जाते हैं, ये इसके रोकने के लिए कुछ ऐसा एक प्रस्ताव आप बनाए। दूसरा, मैं एक जिम्मेदार, इसको जो रास्ते बनाते हैं ठेकेदार और जो इंजीनियर होते हैं, उसको उनके ऊपर निश्चित रूप से जवाबदारी रखनी चाहिए, उसके लिए कुछ नया लॉ बनाना चाहिए। ये मेरी एक विनती रहेगी। सम्मान्य स्पीकर महोदय, ये सच्चाई है कि हमने बीच में बड़े बड़े लोग ही कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया था उसको हमने डाइल्यूट किया ताकि और लोग कॉन्ट्रैक्टर बने, पर ये लोगों को ये हमने जो दिया इसका गलत इफेक्ट आया। 40% बिलो, 38% बिलो, 42% बिलो, अभी तो 50% बिलो। अब ऐसा है कि जो टेंडर बिलो भरता है उसको देना पड़ता है। तो अभी हमने ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स जो थे वो एक तरफ इतने लिबरल किए थे, अब उसको हम फिर बीच में आकर थोड़ा कड़क कर रहे हैं, ताकि ये इस प्रकार से क्वालिटी काम हो और इस प्रकार से जो लोग हैं उनके काम के बारे में कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे डेवलप हो। तो थोड़ा बीच में हुआ है, ये अच्छे भाव से हमने किया था। दुर्भाग्य से जो छोटे लोग जो है मैंने मजाक में कहा कि परिणाम भुगत रहे हैं, तो अभी फिर गए, अब उसको दुरुस्त कर, ये डिलीट कर देना शब्द। श्री जी के पड़वी। थँक यू स्पीकर सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक. मला मंत्री महोदयांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की पिंपळनेर ते सटाणा रस्ता ते किलोमीटर 21/427 ते 64 या भागाजवळील रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे साहेब. रस्त्याच्या मोजमापात काही समस्या असल्याचे दिसते आहे आणि हा रस्ता लवकरात लवकर काँक्रिटिंग करणं आवश्यक आहे, अन्यथा या रस्त्यावर मोठे अपघात होण्याची शक्यताच आहे साहेब. तर मी आपल्याला विनंती करतो की या प्रकरणात आपण तातडीने लक्ष घालावे. हे 3 वर्षापासून प्रलंबित आहे साहेब, तर आपण लक्ष घाला. धन्यवाद. लक्ष घाल. श्री रंग बढ़ने शॉर्ट 1 सेकंड में. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो पालखी मार्ग है देवू से पंढरपुर जाता है, तो देवू से NH4 तक, देव रोड तक जो रक्षा विभाग की जगह है, कई सालों तक वो मार्ग पेंडिंग है। 3.5 किलोमीटर का मार्ग है, तो कब तक पूरा हो जाएगा और रक्षा विभाग के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे?
स्पीकर महोदय, उसको रक्षा विभाग के परमिशन की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी सहयोग लेंगे और जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा